एक दूसरा मैटर था आज दिल्ली हाई कोर्ट में, जहाँ पे हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे थे कोर्ट में। और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस किस तरीके से होता है इसके बारे में हमने आर्ग्यू किया, और एडवोकेट शुभम जी ने आर्ग्यू किया इस मैटर को। जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या केस था और किस तरीके से इसमें चीज़ें हुई है। विक्टिम्स राइट को लेकर के हाई कोर्ट बहुत सजग है, और क्या करा है ये जानने का प्रयास करते हैं। There was a matter where we have appeared, we have represented the accused, where he has been convicted for 10 years of rigorous imprisonment under 376 and 452 of the IPC. We have preferred the appeal under the relevant provision of the CRPC, and the appeal has been admitted by the Honorable High Court of Delhi. Today, the matter was posted for the suspension of sentence. So, the Honorable Court has issued once again the notice to the prosecutrix, that is the victim, so that before deciding the suspension of sentence, the court could also hear the prosecutrix, which is very much required and which is very much relevant, that whether the victim's right has to be assessed on the touchstone of the relevant provision of the CRPC and as well as other relevant provisions of the criminal jurisprudence. So the matter has been posted next in the month of July. So let's see we can catch it or what happens on the next date. सर, इस केस में बेसिकली हुआ क्या था? दे वर इन रिलेशनशिप इनिशियली फॉर फ्यू मंथ्स और ईयर्स, एंड देन एक बार वो पकड़ी गई और उसके बाद हल्ला मचा दिया कि ये मेरे साथ रेप करने के लिए आया है। और उसके बाद जो है किस तरीके से चीजें हुई सर, एक बार उसके बारे में बता दीजिए। See, when we prima facie look at the case, it was a consensual relationship prior to the registration of the FIR. Once the prosecutrix has been caught red-handed by her own sister, she could not offer the explanation to her sister, and thereafter her sister has complained the matter to the parents. In order to prevent herself from being scolded by her parents, she has lodged the false and frivolous FIR against the present accused, wherein he has remained in the custody for long 4 years and is still languishing in judicial custody. And ultimately what happened, after the appreciation of the evidence, London trial court below has convicted the appellant, that is my client, for rigorous imprisonment for 10 years. So prima facie it certainly looked like that it was a consensual relationship prior to the marriage, and when the relations turned sour, the prosecutrix has lodged false and frivolous FIR. And my lord, and this was also the fact that the marriage was solemnized on the same day of incident, no? Yes, on the very same day, with the consent of the parents of both the parties, that is the prosecutrix and my client, that is the accused, the marriage was solemnized, in which a lot of people have gathered in that marriage. And now what happened, even the prosecutrix has admitted that she has solemnized the marriage with the accused out of her own consent and will. But despite that, after the period of 2 months, this FIR has been lodged without offering any explanation that why there was a long delay in the registration of FIR, which itself creates a shadow of doubt on the version of the prosecutrix. तो देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है समाज में। रिलेशनशिप में रहने वाले, सुबह में रिलेशनशिप बना और शाम में शादी हुई, और फिर उसी शाम में FIR भी होता है। होश में रहिएगा जरा। आज मैं काफ़ी दिन बाद शाम में इवनिंग वॉक के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो वाइस रीगल लॉज है, VC ऑफिस है, वहाँ पे आया हूँ। और देखिए कितना ऊंचा झंडा है हमारा तिरंगा। और जब मैं यहाँ पे हॉस्टल में रहा करता था, VKR विराव हॉस्टल में, ग्रेजुएशन के समय में, मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया और उसके बाद LLB भी यहीं से किया। तो मेरा जो कॉलेज था ये बस बिल्कुल बगल में है। अब मैं दिखाऊंगा अभी, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया था। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, CIC के नाम से जाना जाता है। एक डिपार्टमेंट है, इट्स नॉट अ कॉलेज, डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड 3-4 कोर्सेज थे, जिसमें से मेरा एक कोर्स था। खैर, उसके बारे में बाद में बताएंगे। गांधी जी की मूर्ति, तो मैं बता रहा था कि जब मैं हॉस्टल में रहा करता था यहाँ पे, तो हर दिन यहाँ पे मैं शाम में इवनिंग वॉक के लिए आता था। बड़ा मज़ा आता था, बट दिक्कत है अब इस प्रोफेशन में समय नहीं मिल पाता है, इस वजह से हर दिन आना तो मुश्किल है। और आज समय मिला तो मैंने सोचा कि यहाँ पे चलते हैं, कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये जो है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर्स का ऑफिस है। और पुराने ज़माने में जब अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेज यहाँ पे थे, तो ये जो ऑफिस है, यहाँ दिख रहा है अभी, VC ऑफिस है। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन का ऑफिस यही हुआ करता था। तो ऐतिहासिक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हमने वाइस चांसलर्स के अंडर इंटर्नशिप भी किया है ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन। देखिए कितना खूबसूरत है और बहुत बड़ा है ये। अंदर से, अंदर तो अभी अलाउड नहीं है जाना, बट ये बहुत खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया बना है। इसके अंदर जो अंडरग्राउंड जो कैबिन्स हैं, वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि भगत सिंह को यहीं पे रखा गया था। तो जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था यहाँ पे वाइस चांसलर्स के अंडर, दी देन बैक इन 2014 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 2014 में, तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से जाना था, हमने देखा था कि कहाँ पे भगत सिंह को रखा गया था।
और इसके बाद ये जो हमारा गार्डन है, ये गार्डन बहुत ही बेहतरीन है और शाम में बड़ा मज़ा आता है। और सामने ये जो सामने देख रहे हैं, ये मेरा कॉलेज हुआ करता था। ग्रेजुएशन के समय में कॉलेज हुआ करता था, तो कॉलेज और कॉलेज के जस्ट पीछे हॉस्टल था। मतलब विदिन 1 किलोमीटर के अंदर अंदर सब कुछ था। तो बहुत इंजॉय किया है मैंने यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी। हर चीज़ पता है यहाँ पे, कहाँ पे क्या है, कैसे काम होता है, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, बहुत कुछ हमने यहाँ पे देखा और बहुत बेहतरीन समय था। अब तो खैर टाइम नहीं मिलता है, एक्सरसाइज करने का भी समय नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ दिस प्रोफेशन। ये जो है यही था मेरा कॉलेज का गेट, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखो CIC लिखा भी होगा कहीं पे, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड। और यहाँ पे देखो कहीं, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सामने क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है ना, यही मेरा कॉलेज हुआ करता था। सामने अंदर जा करके ये कॉलेज हुआ करता था। और ये पार्क और इसके जस्ट साइड में हमारा हॉस्टल था, BKRB हॉस्टल। खूब मज़े करते थे हम लोग। तो मैं बता रहा था कि जब मैं हॉस्टल में रहा करता था तो उस समय मुझे कुछ भी नहीं पता था लॉ के बारे में, कि लॉ क्या होता है और लॉ करना भी है या नहीं, और कोई ऐसा प्लान नहीं था। बट कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ ज़िंदगी में, लाइफ में, जो कि फिर लॉ पढ़ने पर एक्चुअली मजबूर कर दिया। उसमें से एक इंसिडेंट ये था कि जब मैं हॉस्टल में था तो उस समय कॉलेज की तरफ से कहीं जाना था, US में कहीं कुछ था ऐसा सेमिनार वगैरह। तो उस समय मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, पासपोर्ट नहीं हुआ करता था। तो ऐसा था कि भाई पासपोर्ट बना दीजिए। तो हमने पासपोर्ट बनाने के लिए अप्लाई किया। अब जब हमने अप्लाई किया तो जो है वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आया, दिल्ली पुलिस जो है वेरिफिकेशन के लिए आता है यहाँ पे। और जब वो आए तो उन्होंने पैसा मांगा कि जी इतने पैसे दो तब करेंगे, जो कि मैंने एक्चुअली मना कर दिया कि नहीं, मैं पैसे नहीं देने वाला हूँ, आपको करना है तो कर दो। तो उन्होंने फिर ये निगेटिव रिपोर्ट बना करके उन्होंने भेज दिया वहाँ कि जी इस नाम का व्यक्ति, विवेक कुमार गौरव नाम का व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है। और मैंने प्रयास किया यहाँ जानने का, लेकिन कोई नहीं बता पाया। जबकि मैं मिला हूँ उनसे, मैंने अपना ID दिया है, सब कुछ दिया है और फोटोग्राफ्स भी दिए हैं। और उन्होंने ये कहा कि फ़ोटोग्राफ देखने के बाद लगता है कि ये जो है इंडियन सिटीजन नहीं है। इस तरीके का इन्होंने निगेटिव रिपोर्ट बना दिया था। ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, इस साइड जो है फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स यहाँ पे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मैं बता रहा था कि उन्होंने निगेटिव रिपोर्ट बना दिया। और उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस, तो मैं बता रहा था कि उन्होंने निगेटिव रिपोर्ट बना दिया और उसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने मुझे एक नोटिस भेजा। मैं उस समय ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो भेज दिया कि जी आप मुझे बताइए कि दिल्ली पुलिस के द्वारा मुझे सूचित किया गया है कि आप यहाँ के सिटीजन नहीं हैं और आप यहाँ नहीं रहते हैं, आपने गलत एड्रेस दिया है। तो फिर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा नोटिस में। उन्होंने लिखा था कि 30 दिन के अंदर यदि आप नहीं बताएंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भैया उस समय कानूनी कार्रवाई से बहुत डरते थे। अब तो खैर वो डर खत्म हो गया, अब तो पुलिस प्रशासन से कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि गलत करेंगे तभी डर लगेगा ना, अदरवाइज क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी एडवोकेट्स को कम डर लगता है ना। तो फिर जो है एक्सप्लेन करा हमने अपने डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर थे, उनसे मैंने कहा कि इस तरीके का है। उन्होंने अपने लेटर हेड पे लिख करके दिया कि जो है ये स्टूडेंट मेरे सेंटर का है। तो फाइनली फिर मेरा पासपोर्ट रिलीज़ किया गया। तो कुछ इंसिडेंट थे लाइफ में जो कि प्रेरित किया लॉ करने के लिए। मैंने सोचा कि यार ये ऐसे कैसे हो गया कैसे काम करता है लॉ। उस समय तक तो मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन बाद में ये आइडिया मिला। तो ये एक इंसिडेंट था मेरी ज़िंदगी का जो मुझे लॉ पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर जो है लॉ की पढ़ाई हमने शुरू की। और ये जो है ये आर्ट्स फैकल्टी, इसके जस्ट सामने जो दिख रहा है वो आर्ट्स फैकल्टी है और वहीं पे लॉ फैकल्टी है, लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2 एंड CIC। फिर मैंने यहाँ पे 3 साल पढ़ाई करी। तो ये जो प्लेस है वो काफ़ी जाना पहचाना है और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे आकर के। बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है कि यार मतलब यहीं पे शुरू किया था 2014 में। आई केम टू दिल्ली इन 2014। 2014 से फिर 17 तक ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई करी। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने सोचा कि आपको दिखाया जाए। आप यदि दिल्ली आएँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो नॉर्थ कैंपस में ज़रूर घूमें, इसका एक अलग मज़ा है।